সংকীর্ণ সিঁড়ি করিডোর পার করে প্রাসাদের শিল্প সৌকর্যে অভিভূত হয়ে পরের দিন বেরিয়ে এলাম আমরা জগদীশ টেম্পল হয়ে কুম্ভলগড় ফোর্ট। আর এটাও একটা দারুণ অ্যাডভেঞ্চার, কেননা কুম্ভলগড় ফোর্ট অনেকেই তাদের ট্যুর প্ল্যানিংয়ে রাখে না, কেননা এতটাই ভিতরে আর এতটাই দুর্ধর্ষ একটা জায়গা। সেটাই তোমাদের সাথে আজকেও তুলে ধরবো এই ভিডিওতে। আর এ হলো জগদীশ মন্দির। এই মন্দিরটি গড়েন মহারানা জগৎ সিং। ত্রিতল মন্দিরে কালো পাথরের দেবতা লর্ড অব দ্য ইউনিভার্স জগন্নাথ রূপী বিষ্ণু পূজা হয় আজও। দেবদর্শনে মোবাইল একেবারেই অ্যালাউ নেই, তাই বাইরের দিকের যে 4টি ছোট ছোট মন্দির রয়েছে সেই সব সাইডগুলোই আমি ঘুরে একটু ভিডিও করে নিলাম। এই যে এখানে রয়েছে মিনিয়েচার চিত্রশোভিত যোধপুর এবং জয়পুর রাজকুমারকে স্বামীরূপে নির্বাচনের সংকট এড়াতে 1900 শতকে উদয়পুর রাজকুমারীর বিষপানে আত্মহত্যার দত্তক কৃষ্ণভিলা। সিটি প্যালেস থেকে বেরিয়ে আসার পথেই রয়েছে এই মন্দির চত্বর। অনেকটা উঁচুতে এই মন্দির, তার 4 কোণে রয়েছে 4 দেবতা: গণেশ, সূর্য, দুর্গা ও গৌরীশ্বর দেবতা। না উফ করিস না, উফ করিস না, মা উফ করলেই শুধু কেমন মাথা নিচু করেছে। এই পাশটা দিয়ে কিন্তু আর পাবি না, রাস্তাটা কিন্তু অন্যদিকে চলে যাবে। এখানে কিন্তু দাঁড়ালে পারতিস। এত সুন্দর পাহাড়ের মাঝখানে দেখ কি তৈরি করে রেখেছে। ওয়াও, ঘটের মতো, পুরো ঘটের মধ্যে যেন ফুল পদ্ম ফুলের পাপড়ির মতো সব দিয়ে রেখেছে। বুঝতে পারছো থিমটা কি? আমি তো এটাই দেখছি। না না, আমার হচ্ছে ঘরের মধ্যে কচুরি পানা। বল না কচুরি পানা, তুই কি বুঝবি? ওইটাই তো, যে কোনো জিনিস মানে দেখার চোখ লাগে, বুঝেছিস? টিকিট ঘর আছে, টিকিট লাগবে। রাজরাজাদের ব্যাপারগুলো কি করে বুঝবি? শর্ট দূর থেকে নেই। এই না, একটু সুন্দর করে ভিডিওটা কর। এই নাবছে আমাদের নায়িকা নাবুন। রেড কার্পেট নেই আবার নেবেই। তুমি এখানে এসে খাওয়ার কথা বলবে? না না, বিস্কুট কোথায় শেষ হয়ে গেছে? ওই দেখ, দেখেছি আমি এখানে চা বানাবে টিপটের বক্সের মধ্যে। এনার্জি পেতাম চা বা কফি। সত্যি তো এখানে জানি, কফি টফি খেলে এনার্জি পেতাম। এটাকে আমি এখন পাগড়ি করব। সাবধানে করো, সুন্দর করে পাগড়ি করে তারপরে করব। পাগড়ি করতে গিয়ে বোরখা করে দিও না। তোল আমার সুন্দর সুন্দর ছবি তোল। বলো হ্যাঁ কেন? হ্যাঁ জয় না, ঘোড়া উল্টে পড়ে যাবে তুমি ঘোড়া গাড়িতে উঠলে। আমার মতো মাথা এরকম বেঁধে নাও। মাথাটা দারুণ লাগছে কিন্তু।
মাথায় পাগড়িটা বেঁধেছি না, দারুণ লাগছে। মানে মাথার দুপাশে যে যন্ত্রণাটা না, খুব এনার্জি পাচ্ছি। এই তো এখানে তো চা আছে রাহুল, চা আছে তো এখানে, আছে না? ওই তো চা, চা কফি সব আছে। এখন তোমরা কতটা টাইম কি করবে না করবে, গাইডে কতটা টাইম লাগবে জিজ্ঞেস, গাইড নাও, নাহলে কিচ্ছু বুঝবো না। टाइम क्या लगेगा? 1 घंटा पूरा? কি গো 1 ঘন্টা লাগবে? গাইড নিলে 1 ঘন্টা লাগবে। কিছুই তো জানি না, এই কুম্বলগড় ফোর্ট নিয়ে আমার কোনো কিছুই একেবারে জানা নেই। ইউটিউবে সবাই ঠিকঠাক বলে না, একটু পড়াশোনা, হ্যাঁ সবারটা সব ঠিক না, পড়াশোনা করতে হয়। বিশাল বড় দুর্গ রাহুল, 1 ঘন্টা লাগবে। কি নিয়েছো? গাইড নিয়েছো? 750। এই ওভার 750 एक किलो किया था। चित्तौड़ गए थे 1 किलोमीटर ऊपर जाना है, फिर पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन करते करते हाँ, तब तक explain- drop करूंगा मैं आपको। उसके बाद क्या फोटोग्राफी करते करते आराम से आप आ सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है ना। आइए, इस पूरे प्रीमाइस के अंदर वॉशरूम नहीं है, अगर किसी को यूज करना है तो अभी यूज कर सकते हैं, और कहीं अवेलेबल हाँ नहीं। हम जाएंगे वॉशरूम पर। आइए, फर्स्ट पॉइंट अपन वहां पर रुकेंगे। ये 1 घंटे में वहाँ पर कहीं भी कॉफी वगैरह चाय वाय कुछ भी नहीं मिलेगा। মিলেগা তো আমাদের না ভালো হবে এনার্জি হবে এটা কি নেসক্যাফে? কফি কোল্ড কফি। এটাই চাইছি কতক্ষণ ধরে আমাকে ঠান্ডা দিস না। তুই জানিস না আমার মাথা যন্ত্র। বাবা রাহুল, ওই যে দূরের সিনটা দেখ, ওরে বাবা রে, আমি এখানে মোবাইলে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, সব রোদের আলোর। আমার চশমাটাও বের করলে না তুমি। উফ, হ্যাঁ গাড়ি থেকে সুটা নিয়ে আসো আমি নিয়ে আসবো শু। আমি প্রথমেই বলেছিলাম শুটা পরো, শুটা পরো। এটা নিয়ে যা সবসময় তোর বাবা না জেদ করে আমার সাথে, দেখ এখানে এসেও জেদ। বারবার বললাম শুটা পরো, না হলে হাঁটতে পারবে না। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। নিয়ে আয় রাহুল, শুটা নিয়ে আয়। বসে পড়েছো হিরো, তোমাকে আমি এখানে রেখে চলে যাব। তুমি বউয়ের হাতে রান্না মিস করছো, স্বীকার করলে তাহলে। ওহ, আমাদের তুলো গাছটা নাকি কোথায় তুলো গাছ? এই গাছটাই তো আমার বাড়িতে রয়েছে, স্নেক প্ল্যান্ট। এটার গাছ দেখেছো কত বড় হয়েছে এখানে? আমারও ভীষণভাবে গাছপালাগুলো টানছে। এখানে আতা ফল গাছ বেশি। সাউথে দেখেছিলাম তেঁতুল, এখানে আতা ফল আর পলাশ, প্রচুর পলাশ। तो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये आता है मेवाड़ का पार्ट। और मेवाड़ की जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी अपनी चित्तौड़। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर 15वीं सेंचुरी में जो महाराणा थे, उनका नाम था महाराणा कुंभा। जो महाराणा कुंभा जो थे, वन काल के अंदर मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए 32 फोर्ट कराया था। उसमें से एक ये अजय दुर्ग कहा जाता है, कुंभलगढ़ फोर्ट को। अजय दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया। और ये फोर्ट यहाँ पर इसलिए बनाया गया, जब आप इसके टॉप पे जाते हैं और इसके बैक साइड का व्यू देखते हैं, जो प्लेन एरिया आपको दिखाई देगा वो आता है मारवाड़ पार्ट, और ये आता है पूरा मेवाड़ का पार्ट। तो मारवाड़ और मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण यहाँ पे किया था। महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण 1443 में स्टार्ट किया था और 1458 में कंप्लीट किया था। टोटल 15 साल इस पूरे फोर्ट को बनाने में लगे। उसके बाद आप बैक साइड में ये वॉल जो आपको दिखाई दे रही है, ये वॉल जो जा रही है, ये वॉल जो है, ये वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल है आफ्टर ग्रेट चाइना वॉल, जो कि फोर्ट के इस हिस्से से इधर से स्टार्ट होती है और लगभग छोटे मोटे ये 13 माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद वापस फोर्ट के पीछे के हिस्से पे कनेक्ट होती है। अच्छा, इसकी মানে এই মাউন্টেন্स है। ऊपर से मैं बताऊंगा वैसे। अच्छा, इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और इस वॉल की जो चौड़ाई है वो लगभग 15 फीट चौड़ी वॉल है, जिसपे उस जमाने में 4 हॉर्स राइडर इजीली एक साथ वॉक करके इस पूरे प्रीमाइस को उस समय गार्ड किया करते थे। और यहाँ पर कौन सा मंदिर है? हैं? ये मंदिर? मंदिर अलग अलग है, लक्ष्मी नारायण का। अच्छा अच्छा, उस हमारे गार्ड कर करने में सब जगह जगह पे मंदिर है, वो जो वहाँ पर मंदिर है। मैं बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, अच्छा सुनिएगा। अच्छा, हाँ। जैसा कि मैंने बताया था, इस ये पूरा ये वॉल कनेक्ट होती है और 36 किलोमीटर और चौड़ाई है, जो 4 हॉर्स राइडर इस पूरे प्रीमाइस को गार्ड किया करते थे। इस पूरे प्रीमाइस के अंदर छोटे मोटे बहुत सारे टेम्पल्स भी बने हुए हैं। इस पूरे प्रीमाइस के अंदर टोटल टेम्पल बने हुए हैं 360 टेम्पल्स। कितने?
360 टेम्पल है, अच्छा। जिसमें से 300 जैन टेम्पल है और 60 टेम्पल हिंदू टेम्पल है। जो जैन टेम्पल हैं उसमें से कुछ जैन टेम्पल यहाँ पर बने हुए हैं 2nd सेंचुरी के, सम्राट अशोक के कालीन में, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्धिज्म धर्म अपनाया था और उनके ग्रैंडसन थे जिनका नाम था समृद्धि महाराज, उन्होंने जैन धर्म अपनाया था, तो उसी कालीन में तो जैन टेम्पल यहाँ पे बनाए गए थे। बाकी के जो टेम्पल बने वो ओल्ड सेंचुरी में महाराणा कुंभा के कालीन में बनाए गए थे। उस समय इस पूरे एरिया को था वो कहा जाता था मच्छिंदनगढ़, मच्छिंदनगढ़ कहा जाता था। बाद में 15 सेंचुरी में महाराणा कुंभा यहाँ आए और इस किले का निर्माण किया गया और बाद में महाराणा कुंभा के नाम से इसे कुंभलगढ़ कहा जाता है। महाराणा कुंभा রাজপুতের যে একটা অংশ, হ্যাঁ ওই হতো রাজপুতের একটা অংশ, সেও নিজের এলাকাটাকে গার্ড করবে। नहीं, चित्तौड़ वगैरह ये सारा मेवाड़ का पार्ट है। जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर वो आता है मारवाड़, जयपुर वगैरह आप जा रहे हैं ना, जयपुर वगैरह वो आता है ढूंढाड़। और इसका नाम है भैरव पोल। पोल माने दरवाजा कहा जाता है मेवाड़ की भाषा में। तो ये भैरव पोल जो है ये फोर्ट का मुख्य दरवाजा कहा जाता है, इस फोर्ट के अंदर आने का। वैसे इस फोर्ट के टोटल 9 दरवाजे, 9 गेट्स हैं। फर्स्ट जो आता है वो आता है आरेट पोल, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। अच्छा। सेकंड नंबर जो आता है वो आता है हल्ला पोल, जो कि 1.5 किलोमीटर के आसपास आप उसे क्रॉस करके आए। थर्ड नंबर जो आता है वो आता है अपने हनुमान पोल, जो कि बाहर एक हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। फोर्थ नंबर जो आता है वो आता है राम पोल, जो कि टिकट लेने के बाद आप अंदर एंटर करते हैं। फिफ्थ नंबर आता है विजय पोल, जो कि ऊपर से दिखाई देगा वॉल के उस तरह बना हुआ है। और 6th नंबर आता है ये भैरव पोल। इसको भैरव पोल इसलिए कहा जाता है और ये फोर्ट का मुख्य दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब महाराणा कुंभा 1443 में जब यहाँ पर आए थे और इस पहाड़ी पर किले का निर्माण स्टार्ट किया गया था, तो ये जो पूरा किला जो बनाया गया है, इसके जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे उनका नाम था मंडन। मंडन की देखरेख में ही ये पूरा किला बनाया गया। जब महाराणा कुंभा और मंडन जी इस किले का निर्माण स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे इसकी दीवारें बनाते जाते थे, दिन में रात में दीवारें गिर जाती थी। दिन में दीवारें बनाते थे और रात में दीवारें गिर जाते थे। ऐसा 5 से 7 बार हुआ। तो महाराणा कुंभा चिंतित हुए कि ये बार बार यहाँ पे दीवारें क्यों गिर रही हैं। जब यहाँ के लोकल लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि इन पहाड़ों में जो है एक मेड़ बाबा है जिनका नाम है भैरव मुनि, वो इन पहाड़ों में रहते हैं और तपस्या वगैरह किया करते हैं और इन पहाड़ों के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो आपको बता पाएंगे इस पहाड़ी पर क्या दिक्कत है। तो महाराणा कुंभा उन भैरव मुनि जी के पास गए और उनसे पूछा कि मैं इस पहाड़ी पर किले का निर्माण करना चाहता हूँ, तो ये बार बार क्यों गिर रहा है। तो भैरव मुनि जी ने बताया था इस पहाड़ी पर जो है एक देवी का प्रकोप है, जिसके कारण से यहाँ पर किले का निर्माण होना मुश्किल है। तो महाराणा कुंभा ने कहा इसका कोई तो उपाय होगा जिससे कि यहाँ पे किले का निर्माण किया जा सके। तो भैरव मुनि जी ने बताया था इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है स्वैच्छिक नर बलि। स्वैच्छिक नर बलि दी जाएगी तभी जाके किले का निर्माण हो पाएगा। स्वैच्छिक नर बलि का मतलब समझते हैं, जो अपनी इच्छा से बलि दे। अच्छा। कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं, तो अंत में भैरव मुनि जी खुद इसके लिए तैयार हुए और उन्होंने कहा था कि मैं पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ करूंगा और सर्वप्रथम जहाँ रुकूंगा वहाँ पर किले का मुख्य द्वार बनाया जाएगा और अंत तक जहाँ पहुंचूंगा वहाँ पर किले का निर्माण किया जाएगा। तो भैरव मुनि जी ने पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ किया था और सर्वप्रथम वो यहाँ रुके थे। रुकने के बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे चले, आगे जाने के बाद तलवार से उनकी गर्दन को काट दिया गया था। जो उनका हेड है सर, वो यहाँ पे गिरा था, जिसका सिंबॉलिक टेम्पल गिरना हुआ। और यहाँ पे उनके नाम से मुख्य द्वार बनाया गया भैरव पोल। और सर कटने के बाद फिर भी उनकी बॉडी यहाँ से चलती गई, जो लगभग 700 मीटर ऊपर गई और ऊपर जाके वहाँ पे उनकी बॉडी गिरी और वहाँ पर किले का निर्माण किया गया। जो उस हिस्से को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कटारगढ़, और पूरा प्रीमाइस महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसे कुंभलगढ़ कहते हैं। ও বিমার গিয়া গলা যে কাট দিয়া চলে গিয়া। ও তো স্বইচ্ছায় বলি দিয়েছে, বলেছে একজন মহাদেবীর প্রকট আছে, স্বইচ্ছায় যে নিজেকে নরবলি দেবে, তারপরে এটা তৈরি হবে। তখন শার্টটা পড়েছিল এই যে এখানে, ও কোথায় যে তপস্যা করে এসে, তোমাকে পরে বলবো, আমি পরে বলবো, এখন দেখো শর্ট টাইম। আমি নিজেও তো হ্যাঁ ও আগে এরকমই হতো। বট গাছটা দেখ। बहुत सारे उदाहरण हैं। হ্যাঁ उनके राजा मान सिंह युद्ध करने के लिए आए थे। जब उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ तो उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। जब उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था तो उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जो थे वो सीधे इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर आकर रुके थे। और इस दुर्ग पर रुकने के बाद उन्होंने इस पूरे किले की जो जिम्मेदारी थी वो उनके कजिन ब्रदर थे जिनका नाम था भानसुंगर। भानसुंगरा को इस किले की जिम्मेदारी सौंपकर महाराणा प्रताप यहाँ से चले गए थे ईडर के पास एक चुलिया गाँव है वहाँ पर, क्योंकि उनको और धनराशि एकत्रित करनी थी और सेना को एकत्रित करना था। तो इसी बीच क्या अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप जो है वो यहाँ पर रुके हुए हैं। तो अकबर ने उस समय नया सेनापति नियुक्त किया जिसका नाम था शाबाश खान। शाबाश खान को भेजा गया इस कोर्ट पर कब्जा करने के लिए और महाराणा प्रताप को पकड़ना। और शाबाश खान था वो इन पहाड़ों में खोज है, उसको एग्जैक्टली इस कोर्ट का रास्ता नहीं मिला। तो उस एरिया में लोकल जो प्रवासी हुआ करते थे निरंतर इस कोर्ट का आगे जाते रहते थे, उनको उसने बीच में बंदी बनाया और जबरन उनसे कोर्ट का रास्ता पूछकर सामने वाली जो पहाड़ी वहाँ पर वो पहुँच गया था शाबाश खान तोप गोले लेकर और सेना को लेकर, और उसने वहाँ से इस कोर्ट पर आक्रमण शुरू कर दिया। बट भानसुंगर उनके जो सैनिक थे उन्होंने उसे मुंह तोड़ जवाब देकर उसको यहाँ से भागने पर मजबूर किया, बट इस कोर्ट पर कब्जा होने नहीं दिया। तो उस दरमियान शाबाश खान के द्वारा जो तोप गोले चलाए गए थे उसमें से एक तोप का गोला लगा था जिसका मार्क आज भी ये मौजूद है। ये ग्रे कलर का पत्थर दिखाई दे रहा है, ये क्या नाम बोल रहा है। उसके बाद फिर महाराणा प्रताप को पता चला कि शाबाश खान ने इस फोर्ट पर अटैक किया, तो महाराणा प्रताप और शाबाश खान के बीच युद्ध हुआ। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर गुलेर के जंगल में
1582 के अंदर, और वो घमासान युद्ध था, और उस युद्ध के अंदर फिर महाराणा प्रताप ने शाबाश खान को मारकर उस युद्ध में विजय प्राप्त की। 750 रुपये चार्ज। দেখো পাথরের গায়ের মধ্যে নিয়ে নাও সাথে দিয়ে নাও ले लो साथ में ले लेने के लिए बोला। हमारा कौन देख लेगा टोला आपको लेगा चार्जेस अलग अलग देंगे। हाँ लाख लाख ले लो एक साथ में 2 काज हो जाएगा। চলো আমাদের দেরি হয়ে যাবে। आएगा उन्होंने ऐसे ही सुन लेगा, अब बोलेंगे तो ऐसे ही सुन लेगा। मैं देख रहे हूँ पहले से, अब बोल रहे हैं वहाँ रुक रुक के सुन रहा है। ठीक है चलिए। ओए बाबा এই যে তুলসী মন্দিরের কাছে যে আমার যে প্ল্যান এটা গাছটা রয়েছে না, এই যে এই গাছ, আমারটা আর একটু কালারফুল, এরকমই শীষ বেরোবে, এতটা উঁচু হবে। ওরে বাবা উপরে তো বিশাল ব্যাপার। এখানে এইসব ছোটোখাটো মোবাইল দিয়ে হয়, দেখো কত বড় ইসের মাঝখানে, পাঁচিলের মাঝখানে মাঝখানে সব মন্দির। অন্য জিনিস বলেই তো বললাম না, আমি এই সম্বন্ধে কিছুই জানি না। মানসিং, যোধাবাই, পদ্মাবতী এটুকু পর্যন্ত আমার জানা আছে, সিরিয়াল দেখেছি সেটাও আছে। তারপরেও পাথরগুলোর গায়ে গায়ে কিভাবে বটগাছ, কিভাবে গাছগুলো হয়ে আছে। এই ঋষির নাম যেন কি বললো, ভৈরব, তাই তো? ওয়াও, এখান থেকে পুরো দেখা যাচ্ছে, দেখো। वो है वो शिव टेम्पल, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, हाँ। वो है शिव टेम्पल नीलकंठ महादेव का, महाराणा कुंभा के कालीन में बनाया गया था। उसमें शिवलिंग की जो प्रतिमा है उसकी जो हाइट है वो लगभग 4.5 फीट की है, और महाराणा कुंभा जो थे वो जमीन पर बैठकर उस पर जलाभिषेक और दूधाभिषेक किया करते थे, क्योंकि महाराणा कुंभा की स्थिति वो थी लगभग 8.3 फीट। मेवाड़ शासन काल में कहा जाता है सबसे लंबे जो व्यक्ति थे वो महाराणा कुंभा थे, उनके बाद हुए थे महाराणा प्रताप जिनकी हाइट थी 7.2 फीट, और महाराणा 7.2 हाँ, और महाराणा कुंभा जो थे एक अजय योद्धा के नाम से उन्हें जाना जाता था। उसके बाद सबसे इधर वाला जो टेंपल दिख रहा है डबल ट्रिपल स्टोन फर्स्ट में, इज नॉट अ टेंपल, इज अ वैदिक हॉल, इसको वैदिक हॉल कहा जाता है, जिसके अंदर यज्ञ और हवन किए जाते थे। ये भी महाराणा कुंभा के कालीन में ही बनाया गया, और इसमें कंटिन्यूसली यज्ञवन होते रहते थे। लास्ट जो यज्ञवन यहाँ पे हुआ है वो 19वीं सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी के कालीन में हुआ था, उसके बाद इसमें कोई यज्ञवन वगैरह नहीं हुआ। कौन सा मंदिर में? ये सबसे इधर वाला। ओ इधर वाला। अच्छा अच्छा। और इस वैदिक हॉल के जस्ट बैक साइड में आप देखते हैं 3 पैरेलल टेंपल आपको दिखाई देते हैं। वो तीनों जो टेंपल हैं वो है ब्रह्मा विष्णु महेश के टेंपल। वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि यज्ञ और हवन करते वक्त क्या हिंदू मान्यता के अकॉर्डिंग पृथ्वी लोक के सबसे बड़े देवी देवता को याद किया जाता है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्हीं के फलस्वरूप ये तीनों टेंपल यहाँ पे बनाए गए थे, बट इनमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं रखी गई थी, ये जस्ट सिंबॉलिक टेंपल ही बनाए गए थे। इसी तरह और भी बैक साइड में 2-3 उधर देख रहे हैं, वो सारे के सारे जैन टेंपल हैं जो कि इनएक्टिव हैं। उसके बाद आप देखते हैं ये जो पूरा फोर्ट बनाया गया है वो सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही स्ट्रांगली बनाया गया है, इसी वजह से ये कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया। ये फोर्ट जो है वो सी लेवल से, जो इस फोर्ट की जो हाइट है वो लगभग 3600 फीट की हाइट पे ये फोर्ट बना हुआ है। इतनी हाइट पे होने के बावजूद इस फोर्ट की स्पेशलिटी ये है कि ये फोर्ट जो है 30 to 40 किलोमीटर के रेडियस से कहीं से विजिबल नहीं होता है। आप लोग भी कहीं से भी आ रहे होंगे, आपको ये फोर्ट कहीं से भी नहीं दिखाई देता है। सडनली पास में यहाँ आते 200 मीटर अचानक आपके सामने फोर्ट। अचानक मैं तो उसको बोल ही दिया कि क्या है ये, क्योंकि राजस्थान के सबसे हाइट पे फोर्ट यही है, और तो इतनी हाइट पे होने के बावजूद ये नहीं दिखाई देता है, क्योंकि आर्किटेक्ट ने उसी तरह इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ है कि चारों तरफ माउंटेन्स है, उससे कवर्ड करके इसको बनाया गया ताकि हमेशा दुश्मनों से छिपा रहे। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं ये कोने में इधर सामने वाला वो हाँ। उसको कहा जाता है तारापुर, जो बेसिकली जो ये काम आता है वो आता है वॉच टावर के रूप में, जो कि तीनों चारों दिशाओं में देखने को। अच्छा वॉच टावर। না না বুঝতে পারোনি তুমি, বলছে এমন ভাবে বানিয়েছে বাইরের থেকে ভিতরের কোনো কিছু দেখা যাবে না, শুধু ওই গম্বুজটা হঠাৎ করে মানে চোখের সামনে হঠাৎ করে তোমার চলে আসবে, যেটা আমি ঘাবড়ে গেলাম। আমি তো মাথা নিচু করেছিলাম, হঠাৎ করে একটা বাঘ ঘুরলো, দেখলাম আমি পুরো প্রাচীরটা এরকম, ভাবিয়ে গেলাম না, তোমরা আবার হাসাহাসি করলে। वो अपने रिस्क पे
यस सुनिएगा, देखो यहाँ से मैं आपको कुछ वॉल का पार्ट बताऊंगा कि वॉल कहाँ से होकर क्रॉस होती है। आप देखिए वॉल जो जा रही है उस पहाड़ी के पीछे की ओर जा रही है, अच्छा अच्छा वहाँ से वो डाउन स्टेट जाती है और फिर वहाँ से टर्न लेने के बाद उस कोने पे गोल डाउन दिखाई देता है। दिखाई दिया इधर मैडम, इधर मेरी कहाँ तरफ कहाँ इधर अच्छा 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 उस कोने पे। उसके बाद ये टेंपल दिख रहा है, उसके बिल्कुल बैक साइड में देखते हैं वहाँ पे वॉल क्रॉस होती है नजर आ रही है। दिखाई दी? उसके बाद उस पॉइंट पे भी हल्का सा पॉइंट दिखता है वॉल क्रॉस। हाँ इसी तरह वॉल जो इन पहाड़ों के पीछे से होते हुए फोर्ट के पीछे के हिस्से पे कनेक्ट होती है। पूरी 36 किलोमीटर की जो वॉल है वो आज भी इंटैक्ट है, कहीं बीच से ब्रेक नहीं है। उसके बाद ये सारे जो टेम्पल, हाँ इसके पीछे की तरफ से आ रही है, हाँ। और इसके बाद ये सारे जो टेम्पल देख रहे हैं ये मोस्टली 2nd सेंचुरी के बने हुए संप्रति महाराज के द्वारा बनाए गए थे। मोस्टली टेम्पल जो है वो खंडित हो चुके, टूट चुके, बट इनके अवशेष आज भी पूर्ण रूप से यहाँ पे मौजूद है। वहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता बाई वॉक पैदल जा सकते हैं ये रास्ता बना। उसके बाद वो नीचे ग्रे कलर की वॉल दिखाई देगी, वो पानी के डैम बनाए गए थे महाराणा कुंभा के द्वारा, क्योंकि चारों तरफ माउंटेन्स है और जितना भी बरसात का पानी होता है वो बह के आगे की ओर चला जाता है। तो महाराणा कुंभा ने यहाँ के लोगों के लिए पीने की व्यवस्था के लिए ऐसे 7 चेक डैम्स बनवाए थे जिससे कि पानी यहाँ स्टोर रहता था, लोग खेती और पीने के काम में मोस्टली इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा अच्छा बाबा यहाँ पर जो तोपें रखी गई है वो 19वीं सेंचुरी में महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा। ফেব্রুয়ারির লাস্ট উইক 2023-এর আমাদের এই রাজস্থান ট্রিপের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট এই কুম্ভলগড় ফোর্টের মেঘমহল এবং পাগড়াপোল। লাস্ট পার্টে অবশ্যই সাথে থেকো, না হলে অনেক বড় কিছু মিস করবে।